In clinics, have you been taught about this? Anything? In clinics, anybody, any batch has been taught about this topic? So, what is a nasal polyp? It is a mass, but define it more precisely. It is a edematous prolapsed mucosal mass. Okay. So, the definition of the polyp will be it is a edematous prolapsed mucosa. Anywhere in the body, be it nose or anywhere else, it is a mucosal mass. Okay. So, it is an inflammatory condition characterized by edematous mucosa of nose and sinuses. It is a non-neoplastic thing and most commonly seen in the ethmoid sinus followed by the maxillary sinus. So, what are the types of nasal polyps? One is ethmoidal. Okay. Another one is, दूसरा क्या है? Antroconal. The third is sphenoconal. It is a very rare variety. So, the polyps appear as they have many feet like grape-like structure and are of soft jelly mass. So, why the polyp arises in nose? It is because this when the air passes through narrow cavities, there will be negative pressure according to Bernoulli's phenomena and increased formation of tissue fluid that will in turn lead to edematous mucosa. So, it can be prolapsed or it can be pedunculated or it can be sessile, both. So, what are the conditions in which this thing occurs the most? They are seen in the asthmatics, in certain endocrine disorders, in certain syndromes like Young syndrome, in Samter's triad, which is characterized by nasal polyposis, asthma with aspirin sensitivity. In Cartagener syndrome, what is Cartagener syndrome? Very good. So, there will be ciliary dyskinesia. Okay, what is that? Cilia से क्या होता है? Clearance, mucociliary clearance, that will be hampered. So, it is characterized by what? Sinusitis, bronchiectasis, situs inversus and this ciliary dyskinesia. So, if nasal polyposis is occurring in children, so you need to rule out what? Cystic fibrosis or the ciliary dyskinesia characterized by mucoviscidosis. And in adults, if it is occurring, you need to rule out what conditions? Allergy conditions or prior inflammatory conditions. So, what is the site inside the nose where this polyposis occurs the most? This OMC. What is OMC? Osteomeatal complex. So, what is the histopathology of this polyp? देखो, polyp is a very vague term. Inside the nose, if there is turbinate hypertrophy also, people will label it as कि polyp हो गया. If they are seeing something inside the nose, they will label it as polyp, but that is not the case. We will see in differential diagnosis what are the masses that mimic like polyps. So, it is lined by respiratory epithelium, but long standing cases there tends to change this epithelium, this respiratory epithelium, and it converts into the squamous metaplasia. So, what are the clinical findings? How will the patient present with nasal polyposis? देखो, there are two types of polyposis. One is जो हमने बताया अभी क्या था? Ethmoidal and second is antroconal. यही दो को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो ethmoidal polyposis कब कहाँ मिलता है?
इसी दो पे क्वेश्चंस आएंगे हाँ एग्जाम में। तो इथमोइडल पॉलीपोसिस कहाँ पे मिलता है? इट इज मोर कॉमन इन adults and anthraconal is more common in children. So ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये इथमोइडल पॉलीपोसिस है। इसमें है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है। इथमोइडल पॉलीपोसिस ऑलवेज अकर्स बायलैटरली, दोनों तरफ होगा। सो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन विल बी बायलैटरल। एंट्रोकोनल पॉलिप अकर्स यूनिलैटरली इन चिल्ड्रन। सो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? यूनिलैटरल, ठीक। उसके बाद क्या है? एलर्जिक सिम्टम्स, स्नीजिंग एंड इचिंग। इथमोइडल जो इटियोलॉजी है दैट इज एलर्जी, ठीक है। एंड एंट्रोकोनल द इटियोलॉजी इज प्रिडोमिनेटली इन्फेक्शियस, ठीक। तो उसके बाद है नेजल डिस्चार्ज का कैसा होगा? म्यूकॉइड प्रूलेंट इफ इन्फेक्टेड and there can be hyposmia, anosmia and broadening of nose due to widening, due to pressure. There can be headache, snoring, sleep apnea. Okay, so what are the signs we will elicit? Multiple bilateral polyp-like growth. देखो ये सारे points important है. If a polyp case is given to you in examination, so in findings in anterior anoscopy you will be mentioning these points. Mobile, since it is allergic, it will be pale in color, soft in consistency, it will be insensitive to touch, non-friable, मतलब टूट के नहीं निकलेगा, intact रहेगा, on touching or on probing, non-bleeding, probed all around, ठीक है। arise from middle meatus, OMC बोला ना, most common site, ठीक है। involve the anterior part of nasal cavity and it grows anteriorly. AC grows, antroconal grows, antroquanal. क्वाना कहाँ होता है? तो वो कहाँ जाएगा? पोस्टीरियर। एंड इथमोइडल कहाँ जाता है? एंटीरियरली। तो ये सारे डिफरेंसेस है। अगर किसी भी लेंदी क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है तो इट इज अ साइन इंडिकेटिंग किस तरीके का है। ये एंटीरियर आ रहा है, वो पोस्टीरियर जा रहा है, बच्चों में कौन सा है, इन्फेक्शियस इटियोलॉजी कौन सा है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट चेंज होगा। एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है, स्टेरॉइड किसमें यूज करेंगे, किसमें नहीं करेंगे, ठीक है। किसमें करेंगे? एडल्ट वाले में करेंगे। बच्चों में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका इटियोलॉजी डिफरेंट है, दैट इज अ इन्फेक्शियस इटियोलॉजी। एलर्जिक अगर होता तो स्टेरॉइड इज बेनिफिशियल, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अगर छोटे बच्चों में है कोई नेजल मास तो उसका डीडी क्या हो सकता है? इट कैन बी अ मेनिंजोसील, ठीक। इट कैन बी अ ग्लायोमा, मेनिंगोइंकेफेलोसील। तो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर किसी बच्चे में आपको पॉलीपॉइड स्ट्रक्चर कोई दिख रहा है नोज के अंदर, तो आपको उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करना है। ये नहीं कि उसको जाके सर्जरी कर दिए, पहले उसका जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करके हम देखेंगे कि इज इट अ सीएसएफ। हाँ, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इम्पल्स ऑन कफिंग, ये सब, कि कोई इंट्राक्रेनियल कनेक्शन है कि नहीं, ठीक। और क्या क्या हो सकता है? पॉलीपॉइडल, हाइपरट्रोफिड, मिडिल और इंफीरियर टर्बिनेट। ये मोस्ट कॉमनली दिखता है जिसको लोग पॉलिप लेबल कर देते हैं। पॉलीपॉइडल, हाइपरट्रोफिड, मिडिल और इंफीरियर टर्बिनेट, ठीक है। दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? हाँ, दिस इज इन क्वेश्चन के जैसे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, जिसके साथ हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ पॉलीपॉइडल म्यूकोसा लुक्स लाइक। पेल है, ठीक है, एंड इट इज इनसेंसिटिव टू टच। अगर ये रेड होता दैट इज इन्फेक्शियस है। पेनफुल टू टच अगर होता या ब्लीड्स ऑन टच होता तो वो पॉलिप नहीं होगा, दैट इज सम अदर मास, माइट बी अ मैलिग्नेंट वन। फ्राइबल है, मैलिग्नेंट वन। फ्राइबल का मतलब क्या होता है? इजिली ब्रेकेबल, हाँ, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स है
ये वाले, ये आपको इसी पे आपको डिफाइन करना है पॉलिप को एग्जामिनेशन में, ठीक है। मोबाइल, पेल, सॉफ्ट, इनसेंसिटिव टू टच, नॉन फ्राइबल, नॉन ब्लीडिंग, प्रोब्ड ऑल अराउंड। प्रोब का मतलब क्या हुआ? प्रोब मतलब हम कोई एक जॉब्सन्स हॉर्न प्रोब होता है, उसको पास करते हैं पॉलिप के चारों तरफ, उसको मूव करते हैं देखने के लिए कि वो प्रोब कहाँ पे रुक रहा है। जहां रुक रहा है उस तरफ उसका अटैचमेंट है, ठीक है। अबे तो प्रोब्ड ऑल अराउंड लिखा हुआ है ना, मतलब कहीं, हाँ तो प्रोब्ड ऑल अराउंड है ना, मतलब कहीं अटैच नहीं है, कहीं ना कहीं तो अटैच होगा, लेकिन दैट इज नॉट, मतलब इट इज शोइंग कि इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द टर्बिनेट्स, हाँ, और फ्रॉम द एंटीरियर लेटरल वॉल, माइट बी पोस्टीरियर लेटरल वॉल, ठीक है। एंड इफ इट इज मोबाइल देन ओनली यू विल बी एबल टू पास द प्रोब ऑल अराउंड, ठीक। और भी जो कंडीशंस मिमिक करते हैं, ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस, न्यूप्लास्टिक कंडीशंस लाइक इन्वर्टेड पैपिलोमा, एंजियोफाइब्रोमा, बट सबका अलग अलग है। उसमें क्या था, इट डज नॉट ब्लीड ऑन टच, ये सारे ब्लीड करेंगे टच करने पे, ठीक। मैलिग्नेंसी, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, हाँ, टर्मिनेट हाइपोट्रोफी हो गया। अब हाउ वी विल गेट टू द डायग्नोसिस? बाय डूइंग डीएनई। व्हाट इज डीएनई? डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी, हाँ, or by doing biopsy and doing certain allergy tests. In radiology, what will be finding? X-ray, PNS, ठीक। कौन कौन से व्यूज होते हैं? अब PNS क्या होता है? सोचो, मास्टॉइड का होता है, किसका होता है? तो PNS में क्या क्या व्यूज होते हैं? Anybody? कार्वेल व्यू, वॉटर्स व्यू, ठीक। उसमें जो है क्या दिखेगा? हेजीनेस इन द साइनसेस, हाँ। So what is that haziness? Denotes कि there is some sort of inflammation there. तो साइनसेस के इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे? साइनोसाइटिस, ठीक है। एकदम बेसिक, कीप इट बेसिक, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक्सरे नेजोफेरिंग्स में क्या दिखेगा? व्हाट इज एक्सरे नेजोफेरिंग्स? स्कल का लेटरल व्यू विथ ओपन माउथ, ठीक है। क्यों कराते हैं? ये हमने डिस्कस किया, मैंने बहुत बार डिस्कस किया, एडिनॉइड्स देखने के लिए। अब एडिनॉइड है कि कोई पॉलिप है, ये कैसे पता चलेगा? बताओ। डॉपलर। अब एक्सरे से बात कर रहे, कैसे पता चलेगा? एडिनॉइड कहां से अराइज करता है? नेजोफेरिंग्स के रूफ से, ठीक है, रूफ एंड पार्ट ऑफ द अपर पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो वहां जो है वो वॉल से अराइज कर रहा है, वो वॉल से अटैच है। एंट्रोकॉनल पॉलिप अगर क्वाना में जा रहा है पीछे, इथमोइडल तो जाएगा नहीं वहां क्योंकि वो सामने आ रहा है। एंट्रोकॉनल जा सकता है क्योंकि वो क्वाना पीछे जाता है, तो पीछे जा रहा है, तो उसमें और एडिनॉइड्स में क्या फर्क होगा? ये पोस्टीरियरली अटैच रहेगा और ये तुम्हारा नोज से एक चीज हैंग कर रहा होगा। तो पोस्टीरियर जो वॉल है नेजोफेरिंग्स का, ठीक है, वहां पे क्रिसेंट ऑफ एयर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज द डॉट साइन, ठीक है। ये देखो, ये क्रिसेंट ऑफ एयर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये एडिनॉइड है, ये छोटा सा, ये नोज है, ये पीछे जो लटक रहा है, दिस इज द एसी पॉलिप। और इस पॉलिप और इस वॉल के बीच में ये दिख रहा है, ये दिस इज द क्रिसेंट ऑफ एयर। तो ये एक्सरे अगर आपको दिया जाए और सिर्फ लिखा जाए कि व्हाट इज द डायग्नोसिस, आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
इसको देखना है, ये माउथ है, ओरल कैविटी है, ये नोज है, यहाँ पे जाके ये सॉफ्ट पैलेट है, पीछे से समथिंग इज हैंगिंग डाउन, लेकिन हैंगिंग डाउन के साथ ये कॉलम ऑफ एयर है। अगर कॉलम ऑफ एयर है तो दैट इज नॉट एडिनॉइड, दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी इनसाइड द नेजोफेरिंक्स और द ओरोफेरिंक्स। तो दिस इज एसी पॉलिप। एसी पॉलिप होता किसमें है? ये देख के कैसा लग रहा है? ठीक है, तो सारे चीज मीट कर गए। ठीक, सीटी में ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे, उसमें हमें बोन इरोजन दिख सकता है, या अगर मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसके फीचर्स दिख सकते हैं। ठीक है, नेजल स्वैब में फंगल कल्चर देखेंगे, सीबीसी एसी यूरिन एग्जामिनेशन एंड नेजल स्मीयर फॉर इस्नोफिलिया। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ इथमोइडल पॉलिप? मेडिकल, इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट देंगे, इसमें देंगे स्टेरॉइडल स्प्रेज। क्यों? क्योंकि इसका इटियोलॉजी एलर्जिक है। ठीक, अल्कलाइन नेजल डूचिंग देंगे, ओरल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं एंड नेजल डिकंजेस्टेंस। सर्जिकल मैनेजमेंट, इफ द डिजीज इज वेरी एक्सटेंसिव, इंट्रानेजल पॉलिपेक्टमी कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डू मोर साउंड सर्जरीज डूइंग फेस, intranasal ethmoidectomy, these were all done earlier, extranasal ethmoidectomy, transantral ethmoidectomy, or doing surgery with the microdebridal. So coming to the second entity, that is called as the antrocornal polyp or Killian's polyp. इस पे भी क्वेश्चन आता है, what is Killian's polyp? So where does it arise from? इथमोइडल पॉलिप कहाँ से होता है? जैसे नाम है इथमोइडल साइनस। एंट्रोकॉर्नल पॉलिप कहाँ से होगा? मैक्सिलरी। एंट्रोकॉर्नल में जो एंट्रो है दैट इज द मैक्सिलरी एंट्रम। ठीक है, so this polyp has 3 parts। ठीक, इसके नाम में तो 2 पार्ट है, एंट्रो एंड कॉर्नल, बट इस पॉलिप के 3 पार्ट्स है। थिन स्टॉक दैट इज इनसाइड द मैक्सिलरी साइनस फ्रॉम वेयर इट अराइजेस। सेकेंड पार्ट इज फ्लैट फ्रॉम साइड टू साइड, दैट इज द नेजल पार्ट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द राउंड एंड ग्लोबुलर, दैट इज द कॉर्नल पार्ट, दैट रीचेस द नेजोफेरिंक्स। ठीक, so it grows posteriorly into the corona, then into the nasopharynx, and sometimes even if it is large to the oropharynx। पीछे से hanging structure एक दिखेगा oral cavity examination में। ठीक, so etiology, children and adolescents, as children are more prone to infection। predisposition both males and females similar। sinusitis जिसमें हो रहा है उसमें मिलेगा, और माल डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिलरी साइनस जिन कंडीशंस में होता है वहां पे ये मिल सकता है, ड्यू टू फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी और नेचुरल ऑस्टिया ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ओके, रेयरली एलर्जीज कॉज, बट इट इज नॉट द यूजुअल कॉज। सो वहां क्या था? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। ये क्या है? शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक, अब पेशेंट, अब मान लो 18 साल का कोई पेशेंट है, अब उसमें ये दिया हुआ है शॉर्ट हिस्ट्री, तो वो एडल्ट में नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा पॉलिप में लंबा हिस्ट्री होता है। ठीक, सिम्टम्स यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, एंट्रोकॉर्नल बायलैटरल कर सकता है? इथमोइडल तो बायलैटरली होता है क्योंकि इथमोइड साइनस दोनों तरफ है और उसका नाम ही होता है बायलैटरल इथमोइडल पॉलिपोसिस। एंट्रोकॉर्नल बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, कोना नहीं, नेजोफेरिंक्स। अगर वो कोना से निकल के पूरा नेजोफेरिंक्स ऑक्युपाई कर लिया तो दोनों कोना ब्लॉक हो जाएगा। सो बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन कैन आल्सो बी देयर इन एसी पॉलिप। करेक्ट? ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो
आपको पॉइंट्स पिक करना है कि क्या क्या है। तो बायलैटरल इसमें भी होता है, सिर्फ यूनिलैटरल नहीं होता है, ठीक है। इफ इट इज ऑक्युपाइंग द एंटायरली द नेजोफेरिंक्स आल्सो, ठीक है। नेजल डिस्चार्ज, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, हेडेक, एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, एलर्जिक सिम्टम्स लेस है, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्यों होगा? नेजोफेरिंक्स में क्या है? ओपनिंग है, वो ब्लॉक होने पे हो सकता है। डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है, ग्रोस पोस्टीरियरली, मे नॉट बी सीन इन एंटीरियर एंडोस्कोपी, क्यों? क्योंकि पीछे जा रहा है, ठीक। arises from the lateral wall, so probe can't be passed laterally। अब समझ में आया ये क्यों नहीं पास कर सकते लेटरली? एग्जैक्टली, ओएमसी मतलब ये वो हो रहा था ओएमसी से, मतलब पूरा इथमोइडल लैब्रिंथ से कहीं से भी हो सकता है, या ये हो रहा है स्पेसिफिक लेटरल जो मैक्सिलरी साइनस है वहां से अराइज हो रहा है। तो स्टॉक उधर है, इसलिए आप सर्कुलर मोशन में लेटरली नहीं पास कर सकते, ओके। पोस्टीरियर एंडोस्कोपी में क्या दिखेगा? लार्ज पेल व्हाइट स्मूथ ट्रांसलूसेंट मास कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज, ठीक। हमेशा पॉलिप में वर्ड यूज करना है पेल, कंजेस्टेड नहीं यूज करना है, ठीक। कंजेस्टेड अगर आप यूज कर रहे हैं तो पॉलिप होने का चांस कम है, और बहुत सारा हो सकता है, सिर्फ मैलिग्नेंट ही नहीं हो सकता है। कैन एक्सटेंड ओरोफाइल्स, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट आर द कंडीशंस दैट मिमिक दिस एसी पॉलिप? पहला जो सबसे ब्लेब ऑफ म्यूकस, एक बड़ा सा म्यूकस प्लग है, आपने देखा बच्चे के नाक में, रही तो पॉलिप लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिसअपियर्स ऑन ब्लोइंग द नोज, सिंपल, ठीक। या एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है। अब एंजियोफाइब्रोमा है कि नहीं कैसे पता करेंगे? ब्लीडिंग होगा, वेरी गुड। अब देखो ये इन द ओरोफेरिंग्स ऐसा ग्लोबुलर सिस्टम, ये टॉन्सिल नहीं है, ये टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल है, उसके साथ ये है, थर्ड चीज है, ठीक है। और ये ओव्यूला है, ये ओव्यूला है, ये ग्लोबुलर सा क्या है? ये एक टॉन्सिल, टॉन्सिलर फोसा में टॉन्सिल है, यहाँ एक, व्हाट इज दिस? एसी पॉलिप, ठीक है। फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये देख के कैसा लग रहा है? कॉन्जेस्टेड नहीं, ये एडल्ट का लग रहा है, बच्चे का लग रहा है ना, तो तुम्हारा फाइंडिंग्स तो मैच कर रहा है, बच्चे में होता है एसी पॉलिप, हाँ। ये सारे डीडीज हैं, ग्लायोमा हो सकता है, राइनोस्पोरोडियोसिस हो सकता है, हाइपरट्रॉफी टर्बिनेट्स हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है, थॉर्नवॉल्ड सिस्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? नेजोफेरिंग्स में होती हैं। क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है, मैंने दैट इज दैट इफ दैट अकर्स इनसाइड द नेजोफेरिंग्स। क्लास नीचे, हाँ क्लास नीचे বেশ পরে কথা বলছি আমি, ক্লাস নিচ্ছি। तो क्रेनियोफेरेंजियोमा अराइज कहीं से करता है, लेकिन अगर उसका स्वेलिंग प्रेजेंट है तो दैट इज देयर इन द नेजोफेरिंग्स, ठीक है। दैट कैन मिमिक, ये डीडीज चल रहे हैं ना, कि वहां पे व्हाट इज द डीडी? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर किसी एरिया में कोई स्वेलिंग है तो वहां पे कौन कौन से स्वेलिंग्स हो सकते हैं? अब फॉर और अगेंस्ट उसके हम पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो अब क्रेनियोफेरेंजियोमा वहां पे होता है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि क्रेनियोफेरेंजियोमा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्या क्या स्वेलिंग्स वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगेन डीएनए करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। अब सीटी स्कैन जब कराओगे क्रेनियोफेरेंजियोमा में तो अलग ही चीज आएगा, इसमें अलग चीज आएगा, ठीक है। ठीक है, एक्सरे पीएनएस में क्या दिखेगा? ओपेसिटी ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, दैट आल्सो यूनिलैटरल, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द मास इन द साइनस, ठीक है, ये सब। हाँ ये देखो, X-ray neck lateral view shows a crescent sign positive, that is column of air, that is a translucent area behind the polyp.
पॉलिप जो होगा दैट इज नॉट एयर, इट हैज सम फ्लूइड, इडिमेटस, प्रोलैप्स्ड म्यूकोसा, it should have some water like thing, water consistency कुछ होगा, तो that will have some density, ठीक, and जो column of air रहेगा that is what, air is what in X-ray, air radiolucent होता है, air black होता है, black, 3 densities हैं, एक है black, एक है व्हाइट जिसको ओपेक कहोगे या रेडियो डेंस बोलोगे, और एक होता है रेडियो लूसेंट, ठीक है, वो है इन बिटवीन कंसिस्टेंसीज। तो एयर जो होगा क्या होगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉलम ऑफ एयर ट्रांसलूसेंट और ब्लैक एरिया होगा एकदम, ठीक है, बिहाइंड द पॉलिप। इसीलिए जब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी का आपने फेस किया एक्सरे, फेस के बगल में क्या है, एयर है, तो फेस तो आएगा आपका डेंस, लेकिन एयर क्या आएगा, ब्लैक। वैसे ही साइनसेस के अंदर जो एयर होंगे, अगर उसमें कोई म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी नहीं है तो वो भी ब्लैक आएंगे। सेंटर पार्ट बहुत ब्लैक होगा, जो वॉल्स वाला एरिया होगा वहां पर म्यूकोजल लाइनिंग है, उसके ऊपर थोड़े सिक्रीशंस हैं, वो थोड़े से रेडियो डेंस होंगे, ठीक है। तो ब्लैक सिग्निफाइज एयर, व्हाइट, जेट व्हाइट इज बोन और मतलब रेडियो डेंस मटेरियल, कोई फॉरेन बॉडी या कोई चीज, ठीक है। बीच के जो चीजें हैं वो अलग अलग सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी है वो, ठीक है। सो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इटियोलॉजी क्या था इसका, इन्फेक्शन, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हुआ, और एंटीबायोटिक्स से अगर नहीं होता है, मोस्टली नहीं होता है क्योंकि ये मतलब कुछ ना कुछ साइनस मालफॉर्मेशन है, इस वजह से ही होता है, तो इसमें हम सर्जरी के लिए जाते हैं, फेस विद मिडिल मेटल एंट्रोस्टमी बाय जॉइनिंग द नेचुरल एंड द एक्सेसरी ऑस्टिया, ओके। कार्लवेल कब करेंगे, अगर 18 साल से ऊपर है या रिकरेंस है उसको, ठीक, देखो फॉर रिकरेंस, कार्लवेल लुक तो पढ़ा दिया गया है, हो गया है कार्लवेल। देखो दिस इज ब्लैक ना, ये पूरा हवा है बाहर, ब्लैक, इसके एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यहाँ भी हवा है, ब्लैक, ठीक, ये भी जो है ये भी ब्लैक, क्योंकि यहाँ भी हवा है, ठीक है। जहां जहां पे एब्सोल्यूट एयर है वहां पे ब्लैक, अब उसके ऊपर कोई सॉफ्ट टिश्यू है वो भी तो रेडियोग्राफ में आएगा। साइनसेस के अंदर एयर है, लेकिन साइनस इज अ सेल ना, तो सेल का तो आउटर वॉल है, दैट इज मेड अप ऑफ समथिंग, थिन बोन है, म्यूकोजल लाइनिंग है, सिक्रीशंस है, इसलिए नोज एब्सोल्युटली ब्लैक नहीं आएगा, उसमें आपको थोड़े से रेडियो डेंस चीजें मिलेंगी। फेस हैज बीन टॉट, फेस क्या होता है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल, उसका ये डेफिनेशन है, टू इंप्रूव द म्यूकोसिलरी क्लियरेंस ऑफ द साइनस by removing the obstruction of drainage of the ostia with maximum preservation of sinus mucosa. This is important, maximum preservation of sinus mucosa when medical treatment fails. इसीलिए इसको functional बोलते हैं, ये नहीं कि जाके सब कुछ निकाल दिए, तो बड़ा सा कैविटी कर दिए, जो जो फंक्शनिंग है म्यूकोजा उसको छोड़ दिए, जो डिजीज्ड है बस उतना ही हमने निकाला, that is why it is called as functional surgery. What are the indications? Quite many. Recurrent or chronic sinusitis, diffuse nasal polyposis, allergic fungal sinusitis, CSF rhinorrhea, endodysia, बहुत सारे हैं, सेप्टोप्लास्टी हो सकता है, फॉरेन बॉडी रिमूवल हो सकता है, कॉन्का, व्हाट इज कॉन्का बुल्लोसा, कॉन्का बुल्लोसा रिसेक्शन, ऑप्टिक नर्व डिकम्प्रेशन, ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन, कॉर्नियल एट्रेसिया, एपिस्टैसिस, क्या होता है ये, हाइपरट्रॉफिड मिडिल टर्बिनेट, ठीक है। कब नहीं करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फेस कब नहीं करेंगे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक, इंट्राक्रेनियल कोई कॉम्प्लिकेशन हो रखा है या इंट्राऑर्बिटल कुछ हो रखा है,
एग्रेसिव फंगल इन्फेक्शन है, साइनस ओपनिंग्स, ठीक है. हाउ इट इज डन? अंडर लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन इन एडल्ट्स, एंड बच्चों में अंडर जनरल एनेस्थीसिया. टॉपिकल एजेंट क्या देंगे? 2% this lignocaine with 1 lakh units of adrenaline. ठीक है. पोजीशन क्या होगा? सुपाइन, हेड रेस्टिंग ऑन अ रिंग, रोटेटेड टुवर्ड द सर्जन, टेबल रेस एट हेड एंड. ठीक है. विजुअलाइज कर पा रहे हो? तुम लोग को दिखाया भी गया एक बार. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा. टेक्निक्स क्या होते हैं फेस के? 2 टेक्निक है. हाँ, वन इज स्टैमबर्गर टेक्निक, दूसरा इज ये वाइगैन टेक्निक. ठीक. स्टैमबर्गर टेक्निक क्या होता है? इट इज अ कंजर्वेटिव टेक्निक. इसमें हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं सीक्वेंशियल डिजीज को क्लियर करते हुए. और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम मिडिल टर्बिनेट को रेस्पेक्ट करते हैं, उसको हम रिमूव नहीं करते हैं इफ नॉट रिक्वायर्ड. ओके, तो इसका क्या नाम है? स्टैमबर्गर और क्या है? मेसर क्लिंगर टेक्निक. ठीक है. मोर कंजर्वेटिव, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. ठीक है. एक एक करके सीक्वेंशियली करें. हाँ, मोर कंजर्वेटिव एज मिडिल टर्मिनेट नॉट रिसेक्टेड. ठीक है. और एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो आता है अनसिनेट प्रोसेस. एक क्वेश्चन आया था ना तुम लोग का, सबसे पहले फेस में क्या करते हैं? है? तो दूसरा है वाइगैन टेक्निक. इसमें क्या करेंगे? पार्शियल और कंप्लीट रिसेक्शन ऑफ मिडिल टर्मिनेट ऑलवेज डन. ठीक. इट इज फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर. और ये हम कब करते हैं? जब ऑलरेडी कोई सर्जरी उसका नोज का हो रखा है, जब लैंडमार्क्स आर नॉट प्रोमिनेंट. ठीक है, तब वाइगैन को करते हैं. ठीक है. When surgical landmarks are not identified, मतलब प्रीवियस सर्जरी उसका हो गया है, तब करते हैं. एंड मिडिल टर्मिनल रिसेक्शन करने के बाद पोस्टीरियर इथमॉइड्स क्लियर करते हैं, स्फिनॉइड क्लियर करते हैं, देन वी कम टू द एंटीरियर इथमॉइड्स, पोस्टीरियर टू एंटीरियर. ठीक है. सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगा? वॉच फॉर स्वेलिंग, लुक फॉर सर्जिकल एम्फाइसीमा, गिव एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, leukotriene inhibitors, analgesics, antifungals, alkaline nasal douche. Why this douching is important? douching क्या होता है? You are handling the mucosa now, so you are playing with the ciliary mechanism. तो जब सर्जरी के जस्ट पोस्ट ऑप, since the ciliary mechanism is not at its full potential, there tends to be accumulation of these secretion leading to crusting. crusting. तो crusting যেন না হয় তার জন্য douching is important. ठीक है. and crusting होगा तो अगेन इन्फेक्शन होगा, एंड इन्फेक्शन होगा तो तुम्हारा जो सर्जरी किया है वो कॉम्प्रोमाइज होगा. तो douching is very important. ठीक. कॉम्प्लिकेशंस में माइनर क्या क्या हो सकता है? पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्टेनोसिस हो सकता है, हाइपोस्मिया, साइनेकी, हेडेक, पेरीऑर्बिटल सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट का इंजरी या सैक का इंजरी. मेजर में एंटीरियर स्कल बेस में अगर आपने कुछ किया तो CSF लीक हो सकता है, मेनिंजाइटिस, इंटरक्रेनियल ब्लीड, ऑर्बिटल हेमाटोमा बन सकता है. ऑर्बिटल हेमाटोमा क्यों बन सकता है? नोज में सबसे ड्रेडेड आर्टरीज क्या क्या है नेजल सर्जरीज में? एंटीरियर और ठीक. तो ब्लीडिंग के केस में कौन सा इंपॉर्टेंट है? स्पिनोक्लेटाइन. एंड एंटीरियर इथमोइडल कहाँ इंपॉर्टेंट है? अगर आपने उसको इंजर किया तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर इथमोइडल जो है वो स्कल बेस से निकल के नोज से होके फिर ऑर्बिट से होके जाता है.
तो जैसे ही मान लो आपने उसको किसी वजह से निक कर दिया, कट कर दिया, तो जो आर्टरी क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है, वो रिट्रैक्ट करता है। तो वहां जहां पे वो है, उसका जो इतना छोटा पैसेज होता है, मतलब पाथ होता है कि एक चला जाएगा ब्रेन की तरफ, एक चला जाएगा ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर वाला ब्लीड अगर किया, करेगा ही ऑब्वियसली, कुछ देर तो करेगा। तो ऑर्बिट के, इट इज अ क्लोज स्पेस, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है अगर आपने टाइमली उसको इंटरवीन नहीं किया तो, डिकम्प्रेस नहीं किया तो, ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन नहीं किया, इसीलिए इट इज वेरी ग्रेडेड। ये वाला एंटीरियर इथमोइडल होगा, ये anterior ethmoidal artery, injury to anterior ethmoidal artery leads to blindness, treat the bleeding को immediate pack removal steroids। ठीक, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, फेस के, मिनिमली इन्वेजिव, बेटर विजुअलाइजेशन, better visual illumination, trauma is less, you can document it, and no skin incision is needed, and preservation of the mucociliary clearance। कार्डवेल लुक क्या होता है, ये भी पढ़ाया गया आप लोगों को, हुआ है फेस हुआ था, यहाँ नहीं, डेमो क्लासेस में। डेमो में नहीं हुआ है कार्डवेल लुक, चलो अभी हो जाएगा। इसको क्या क्या कहते हैं, अदर नेम्स है रेडिकल एंट्रोस्टोमी, कैनाइन फोसा एंट्रोस्टोमी और एंटीरियर एंट्रोस्टोमी। व्हाट इज द प्रिंसिपल, एंट्रोस्टोमी, मतलब मेकिंग सम काइंड ऑफ ओपनिंग, ठीक, मतलब ऑस्टोमी है इसमें। तो एक ओपनिंग हम करेंगे मैक्सिलरी, जो भी मैक्सिलरी साइनस को हम टारगेट कर रहे हैं उसके एंटीरियर वॉल में, कैनाइन फोसा के थ्रू। दूसरा एंट्रोस्टोमी हम करेंगे उसके इंफीरियर मीएटस में, ठीक। तो टू एंट्रोस्टोमीज आर नीडेड, टू एंट्रोस्टोमीज आर क्रिएटेड फॉर ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस। वन इज इंफीरियर मीएटल और इंट्रानेजल परमानेंट एंट्रोस्टोमी, एंड सेकेंड वन इज कैनाइन फोसा और सबलेबियल एंट्रोस्टोमी, ठीक है। मतलब इंसिशन कहाँ लगाएंगे, लिप को रिट्रैक्ट करके सबलेबियली, ठीक है। इंडिकेशन इज मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिड फेशियल एंड ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, मिडिल मैक्सिलेक्टमी का इनिशियल स्टेप के तौर पे कर सकते हैं। फॉरेन बॉडी इन मैक्सिला, मैनेजमेंट ऑफ सीए पैलेट, क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस विद इरिवर्सिबल changes to sinus mucosa, this is an important indication, okay। complicated acute maxillary sinusitis, recurrent AC polyp, पहले ही बताया था 18 years से ऊपर प्लस रिकरेंस, दो चीजें होनी चाहिए। अप्रोच टू टेरिगोपैलेटाइन फोसा फॉर लाइगेशन ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। वेयर इज टेरिगोपैलेटाइन फोसा, लोकेशन, रफ लोकेशन बताओ कहां पे होता है, नहीं एंटीरियर टू पोस्टीरियर बताओ। वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस है, एंटीरियर मैक्सिलरी साइनस है पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। सामने का एक वॉल है, पीछे का एक वॉल है, उस पीछे का वॉल के जस्ट बिहाइंड इट इज द टेरिगोपैलेटाइन फोसा, ठीक है। तो उस एरिया में अगर अप्रोच करना है, क्यों अप्रोच करना है, वहां पे क्या होता है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी मान लो ब्लीड किए जा रहे हैं, ठीक है, पैकिंग से भी नहीं रुक रहा है, तो वो किसका ब्रांच है, उसको लाइगेट करना होगा ना, तो उसको कहाँ अप्रोच करेंगे, टेरिगोपैलेटाइन फोसा में, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर एज इज लेस देन 18 ईयर्स, एक्यूट कंडीशंस में नहीं करेंगे, डायबिटिक्स में नहीं करेंगे, प्रिपरेशन के अंडर G8 इज डन इन सुपाइन पोजीशन, इंसिशन इज सबलेबियल इंसिशन बिटवीन कैनाइन एंड सेकेंड मोलर अपर, ठीक है। कैनाइन फोसा एंट्रोस्टोमी करेंगे, फिर डिजीज को रिमूव करेंगे, इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस जो नेजल एंट्रोस्टोमी है वहां से हम पैक डाल के रखेंगे, क्लोजर ऑफ द सबलेबियल इंसिशन, फॉलोइंग दैट पोस्ट ऑपरेटिव जो होगा एंटीबायोटिक्स, आइस पैक, रिमूवल ऑफ द पैक जो हमने इंट्रानेजल एंट्रोस्टोमी के थ्रू रखा था आफ्टर 2 days,
एंड फॉलोड बाय सलाइन इरिगेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इस जगह पे क्या होता है एनाटॉमिकली, इस एरिया में मैक्सिलरी साइनस होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, अगर इसका जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एनेस्थीसिया टू चीक। क्यों, इंजरी टू इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक। बात बाकी तो है, एनेस्थीसिया टू टीथ हो सकता है, ऑर्बिट हो सकता है, एनएलडी का इंजरी हो सकता है। इथमोडेक्टमी, this was done earlier, not done nowadays. इंट्रानेजल थ्रू मिडिल मीटर्स करेंगे, ब्लाइंड प्रोसीजर होता है। एक्स्ट्रानेजल मतलब एक्सटर्नल अप्रोच से जो होता है उसमें हम एक इंसिशन देते हैं, दैट इज नेम्ड इंसिशन, लिंच हावर्थ इंसिशन, दैट इज उस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिकेशन क्या होता है, पायोसील ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन, रिपीटेड रिकरेंस और सीएसएफ रिपेयर। ट्रांससेंट्रल हॉगन्स ऑपरेशन में करते हैं व्हेन बोथ मैक्सिलरी एंड इथमोइड साइनस आर अफेक्टेड, और डू कलवर फॉलोड बाय इथमोइडल सर्जरी। ये इथमोइडेक्टमी के टाइप्स हैं, जस्ट नेम्स याद करने से रहे, इंटरनेजल, एक्सटरनेजल एंड ट्रांससेंट्रल, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है।